السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کورس اور اس کے سلسلے کا ایک اور لیکچر. اچھا جی، اب اس لیکچر میں دو کوشچنس کو شامل کروں گا اور پھر ساتھ ساتھ ہم ایک تھیوری کو بھی ڈسکس کریں گے جی. سب سے پہلے تھیوری کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم کوشچنس کو ایڈ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک میں. سب سے پہلے ہم جناب تھیوری کی طرف چلتے ہیں. ریم کے بارے میں نے آپ کو اس سے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اور اس میں نے آپ کو ریم کے کچھ ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتایا. ریم کی ورکنگ، اس کا جو ایک فنکشن ہے آپ کے کمپیوٹر میں وہ کیا ہے، اس کو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی نالج جو ہوتا ہے نا وہ پرفیکٹ یا کامل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. اور اسی حوالے سے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوتے ہیں کسی قسم کے، یا اگر آپ کو کوئی ورڈ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، کسی جگہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، تو آپ وہ ضرور ڈسکس کیا کریں. سیکنڈلی، ریم جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کا ایک ایسا کمپوننٹ ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کا تمام ڈیٹا جس پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے لیٹ سپوز میں اگر کچھ ٹائپ کر رہا ہوں، کچھ بھی ٹائپ میں نے کیا ہے اور یہ ابھی سیو نہیں ہوا ہے، یہ کرنٹلی اس وقت ریم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ کی ایک ان سیکوینشل اسٹوریج ہوتی ہے، یہ پرائمری اسٹوریج ہوتی ہے، یہ فاسٹ اسٹوریج ہوتی ہے اور یہ ٹیمپریری اسٹوریج ہوتی ہے. اور جب تک ڈیٹا ہارڈ ڈسک میں یا سیکنڈری میں اگر آپ کی جو اسٹوریج ہے اس میں سیو نہ ہو تو ڈیٹا آپ کا ریم میں ہی رہتا ہے اور یہ ڈیلیٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ریم جو ہوتی ہے وہ الیکٹریکلی ڈیٹا کو سیو کرتی ہے. اور الیکٹریکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے کمپیوٹر میں الیکٹریسٹی موجود ہے تو ریم میں ڈیٹا سیو ہے. تو جیسی الیکٹریسٹی آف ہوگی تو ریم میں سے ڈیٹا اریز ہو جائے گا. الیکٹریسٹی دو طریقوں سے آپ کے کمپیوٹر میں آ رہی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ. آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتا ہے، نارمل کمپیوٹر ہوتا ہے، وہ آپ نے بجلی کے ساتھ پلگ ان کیا ہوتا ہے، آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی فائلز کے اوپر، کچھ بھی پکچرز ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نیٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی لائٹ آف ہوتی ہے جناب، وہ آپ کا جو کرنٹ کام ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہے کہ آپ کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ سیو نہ ہو. اس وجہ سے کیونکہ وہ ڈیٹا ریم میں جا رہا ہوتا ہے اس وقت کرنٹلی، اور ریم اسے ہولڈ کر رہی ہوتی ہے، اور ریم کے ہولڈ کرنے کی وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی بجلی آف ہوتی ہے تو ریم کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن لیپ ٹاپ میں یہ معاملہ ہے کہ ریم میں جو آپ کی پاور آ رہی ہے اوبیسلی وہ تو ہم پاور سورس سے چارج کرتے ہیں، لیکن بیٹری اس میں بھی ظاہر چارجنگ ہے، سیو ہے، ابھی یہ بیٹری پر چل رہا ہے یہ میرا لیپ ٹاپ، تو اوبیسلی یہ ایک دم سے بند نہیں ہوگا. تو اس کو سیو کرنے کا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو کوئی اتنی ایمرجنسی والا ایشو نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جب تک آپ کا ڈیٹا سیو نہیں ہوا ہے تو وہ اوبیسلی وہ خطرے کا شکار رہتا ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. آج کا جو ہے روم. روم کیا ہوتا ہے جناب؟ روم کا مطلب ہے ریڈ اونلی میموری. اچھا، اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان لائک ریم، یعنی کہ آپ کی جو ریم ہے، ان لائک ریم، روم اسٹورز ڈیٹا پرماننٹلی. یاد رکھیے گا کہ روم آپ کا ڈیٹا جو ہوتا ہے نا وہ پرماننٹلی سیو رکھتی ہے. اٹس مین دیٹ اٹس کنٹینٹس آر ناٹ اریزڈ when the power of the PC is shut down. And also we don't have to save data in ROM اوور اینڈ اوور، یعنی ہمیں بار بار اس کے اوپر ڈیٹا سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پرماننٹ ڈیٹا سیو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہوتا. اب روم کہاں یوز ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اور اس کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کس طرح مطلب پرماننٹ سیو ہوتا ہے، اور وہ ہمارے کس کام کا ہوتا ہے، یا ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے. دیکھیں، آپ کے کمپیوٹر کی جو بایوس سیٹنگ ہوتی ہے نا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بایوس سیٹنگز آف آور کمپیوٹر آر این ایگزامپل آف روم، یعنی ریڈ اونلی میموری.
रीड ओनली मीन्स अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पहले इसको समझ लें कि जो बायोस सेटिंग होती है ना आपके कंप्यूटर की बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की, इसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसलिए फ़िलहाल इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी तमाम सेटिंग्स आपकी रोम में होती हैं, या यूँ समझ लें कि रीड ओनली मेमोरी में होती हैं। जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर ये डेल का कंप्यूटर है तो डेल का लोगो आता है सामने, फिर वहाँ पर लिखा होता है F2 टू एंटर सेटअप, इसी तरह F12 बूट सेटिंग्स या बूट मेन्यू या F1 टू कंटिन्यू। तो फिर जब आप F1 या F2 करके जाते हैं बायोस के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर जाकर चेंजिंग करते हैं हार्ड ड्राइव फास्ट फलां 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 वट एवर, तो वो सारा डाटा आपका बेसिकली वो आपका रोम में होता है। यही वजह है कि उसको आपको जो है ना वो सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी आपका सेव्ड होता है। सिर्फ ये है कि उसके अंदर जब आप चेंजेस करते हैं ना तो चेंजेस को आप सेव करते हैं, जैसा कि अगर आपने उसमें कोई डेट टाइम चेंज किया आपने या कोई और चीज़, उसको आप सेव करते हैं। अदरवाइज़ उसका जो अपना डाटा और जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं ना कंप्यूटर की, वो परमानेंट सेव रहती हैं, वो रोम चिप के अंदर होती हैं, ठीक है। और रोम मीन्स दैट वी कैन ओनली रीड द डाटा बट कैन नॉट डिलीट और मॉडिफाई इट। अच्छा, अब इसमें अक्सर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। एक बार मैं इसी तरह लेक्चर दे रहा था तो मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया, और बल्कि सवाल भी किया और वो अपनी बात पे जो था ना वो काफ़ी हद तक वो कंफ्यूज था। उसने कहा जी ये आप कह रहे हैं कि ये डेटा चेंज नहीं हो सकता रोम का, जबकि हम तो जाते हैं बायोस में चेंजिंग करते हैं, हम डेट टाइम सेव करते हैं, फलां फलां करते हैं। मैं कहा भाई देखें बात ये है कि वो आप उस हद तक चेंजिंग करते हैं जो वो चेंजिंग का प्रोविजन आपको देता है। अब इसकी मिसाल मैंने इस तरह दी है कि देखें आपका जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो आपसे कहता है कि जनाब F2 करें, तो आपने सेटअप में जाना है और इसी तरह डेल का लोगो आ रहा होता है, तो क्या डेल की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं या उसकी जगह पर कोई और चीज़ बना सकते हैं? नहीं, जब तक कि आप उसकी फ्लैशिंग ना करें। और एक वो हार्डवेयर का एक मामला है, ऑप्शन उसका भी मौजूद है लेकिन उसके लिए आपको फ्लैशिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको दूसरे मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। नॉर्मल जो है ना तरीक़ाकार कंप्यूटर का जो हम जानते हैं उस तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आप उसकी बायोस की जो सेटिंग्स होती हैं जहाँ पर वो आपको दिखा रहा होता है जी ये कंप्यूटर कोर i5 है या 7 है, तो उसकी जगह पे आप चाहें कि जी ये मेरा कोई और कुछ लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर, जैसे वाइटल कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए इस तरह, तो वो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ये बेसिकली इसीलिए रीड ओनली कहलाता है, क्योंकि इसमें से हम इसके कंटेंट्स को हम डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ इसकी जो सेटिंग्स में हमें ऑप्शन मिलती है कि हमें हार्ड ड्राइव फर्स्ट करनी है रैम, वहाँ हम कर सकते हैं कि हार्ड ड्राइव फर्स्ट करनी है या हमने USB फर्स्ट करनी है या CD-ROM फर्स्ट करना है बूट के लिए, तो वो हम चेंज कर सकते हैं। और वो भी जो जहाँ तक हमें इजाज़त दी होती है कि जी आप ये जो आपके पास 3 ऑप्शन है ना, इनमें से आप कोई पहले ले आएँ। आपने अक्सर देखा होगा, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि पुराने कंप्यूटर्स के अंदर USB से बूट की ऑप्शन नहीं है। यानी पुराने कंप्यूटर से मुराद है कोई Pentium 4 या Core 2 Duo के कुछ ऐसे कंप्यूटर्स और वर्जन्स हैं जिनके अंदर आप USB से विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब आप उसके सेटअप में जाते हैं तो आपको या तो DVD-ROM से आपको बूट करने की ऑप्शन मिलती है या वो भी नहीं मिलती, लेकिन उसके अलावा आपको USB से बूट की ऑप्शन नहीं मिलती। तो ये वही वजह होती है क्योंकि वो बायोस उनकी इस तरह से वो बनी होती है और वो अपडेट नहीं होती, या वो उसके अंदर कोई नई जो है ना ऑप्शन नहीं होती। यही वजह है कि वो फिर उसके अंदर आप USB से बूट नहीं कर सकते। बेशक उसमें USB का ऑप्शन मौजूद होता है, USB आप लगा सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी विंडोज़ चल रही होती है तो USB से डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर की विंडोज़ करप्ट हो जाए तो आप उसमें विंडोज़ करना चाहें तो तब आप विंडोज़ से उसे बूट नहीं कर सकते सेटअप के थ्रू, या रोम जो आपकी बायोस होती है, बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर आपको वो प्रोविजन नहीं मिलता। तो ये है जी आपकी रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि अक्सर हम कोई पिक्चर खोलते हैं तो वो हमें कोई एसोसिएशन का हमें मैसेज देता है, हम ओके करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर देता रहता है, तो ये क्या इशू है? इससे पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, मैं वंस अगेन आपको उसके हवाले से बता देता हूँ। मेरे पास एक पिक्चर है, लेट्स सपोज ये BMP की एक फ़ाइल है। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ जी, फ़र्ज़ करें, और ये मेरे पास एक ऑप्शन आ जाती है, और ये एक ऑप्शन आ गया, हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। अब ये यहाँ पर जो है ना ये ऑप्शन बता रहा है कि जनाब इसमें से आपने किस में क्लिक करना है। पहले तो ये समझ लें कि आपकी विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर व्यूवर है ना वो फ़ोटोज़ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे ऊपर जो ऐप नज़र आ रही है फ़ोटोज़। इसके ऊपर इंशाल्लाह कभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि समटाइम्स ये गायब हो जाता है आपके कंप्यूटर से और आपकी जो पिक्चर्स होती है ना वो डिफरेंट ऐप्स में खुल रही होती हैं। जैसे ये फ़ोटो पेंट अगर मैंने इंस्टॉल किया है, या मैक्रोमीडिया 5works में इंस्टॉल करता हूँ, या कोई और सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर जो फ़ोटो एडिटिंग का है तो वो उसमें ओपन होना शुरू हो जाती है, तो वो हमारे लिए बड़ा इरिटेटिंग होता है सम टाइम, क्योंकि हम सिर्फ तस्वीरों को व्यू करना चाहते हैं। तो व्यू करने के लिए विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट जो व्यूअर है, पिक्चर व्यूअर, वो फ़ोटोज़ है। आपने देखना है कि ये चेकड है, मतलब अगर कोई और ऑप्शन चेकड है तो आपने इसको चेक करना है, सेलेक्ट रखना है, और आपने ऑलवेज़ यूज़ दिस ऐप टू ओपन .bmp फाइल्स, इसको चेक कर देना है और ओके करना है। नेक्स्ट टाइम ये आपसे जो है ना कन्फर्मेशन नहीं मांगेगा, मतलब आप डबल क्लिक करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये फ़ोटोज़ में ही ओपन करेगा। तो आई होप कि आपको ये इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। और बाकी फ़ाइल एसोसिएशन भी इसी तरह, अब आप देखें यहाँ PNG है, आप डबल क्लिक करेंगे भी फ़ोटोज़ में ओपन हो रही हैं। कोई JPEG में होती हैं, ये देखें ये JPG है, यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसमें भी जा रही है। ये इंशाल्लाह एक्सटेंशंस के बारे में भी मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा, और उसके अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर तमाम कोशिश करूंगा जितनी हो सके, मतलब 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जितनी मुझसे हो सके मैं फ़ाइल एक्सटेंशंस आपके साथ शेयर करूंगा कि कंप्यूटर में कितनी टाइप्स की फ़ाइलें हम बना सकते हैं, बनती हैं, और पिक्चर्स की कितनी टाइप्स की फ़ाइलें होती हैं, उनका फ़र्क क्या होता है आपस में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगर हम किसी डेस्कटॉप ऐप का या किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके सामने ये ऐप्स पड़ी हुई हैं जैसे फ़ोटोशॉप है, MS वर्ड, एक्सेल वगैरह है, तो इसका कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं, यानी बजाय इस पर डबल क्लिक करने के, इसको यहाँ से निकाल कर ओपन करने के, तो हम कीबोर्ड से अगर इसको चलाना चाहें तो बिल्कुल होता है जी ऑप्शन इसका। इस पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टीज़, किसी भी शॉर्टकट के लिए है ये, ठीक है ना, ओरिजिनल ऐप के लिए नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, ये जो शॉर्टकट आपको मैं बता चुका हूँ कि इसके ऊपर ये एरो हेड बना होता है, ठीक है, तो ये निशानी होती है कि ये शॉर्टकट है उस सॉफ्टवेयर का। लेट सपोज मैं पावर पॉइंट का बनाना चाह रहा हूँ, इस पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ लूँगा, और यहाँ पर आपको जो है ना जी एक अदद ये मेन्यू देखने को मिलेगा। इसमें शॉर्टकट के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगी शॉर्टकट की, यहाँ आपको नज़र आ रही है नन। अच्छा, इसके लिए मैं वंस अगेन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ओके ऐसे लिख दिया था। अच्छा, अब यहाँ से इसको मैं सबसे पहले आपकी जो ये विंडोज़ है इसको यहाँ रखता हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। आपने इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल को होल्ड रखना है। देखें आल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा कीबोर्ड से, यानी कंट्रोल और आल्ट, आपने सिर्फ एक कंट्रोल दबाना है, आल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब चूंकि ये पावर पॉइंट है तो मैं चाहता हूँ कि P इसके साथ में टाइप कर दूँ, तो P से पावर पॉइंट है मुझे भी याद रहेगा। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं जनाब अपने कीबोर्ड से ना कंट्रोल प्लस आल्ट इनको होल्ड रखूँगा और साथ में मैं P प्रेस करूँगा, तो ये आपके पावर पॉइंट की देखें ऐप ओपन हो जाएगी बगैर आपका जो है ना इसको डबल क्लिक किए या कोई भी कहीं से एक्सेस करे बगैर। तो ये याद रखिएगा ये चीज़ है। इसी तरीके से ये MS वर्ड है, इसकी भी आप लगा सकते हैं। पावर पॉइंट जैसा लगाई है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, शॉर्टकट की उसी तरह कंट्रोल को दबाएं, आल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पीछे प्लस प्लस इसका मतलब है ये होल्ड होंगी, साथ W को प्रेस कर दें और उसके बाद आपने ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो जनाब ये आपकी शॉर्टकट बन जाएगी। अब आप कंट्रोल प्लस आल्ट करेंगे और W, तो ये जनाब आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। सो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं, और मज़ीद इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूँगा।